Assalamu alaikum and a very, very warm welcome to all of you who are tuning in to another session live with Shifam. हर हफ्ते हम चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक आए जिसकी वजह से आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो और आप बाकियों की भी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकें। हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब तक इंडिविजुअल या पेशेंट बिल्कुल ही उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट ना हो रही हो, तब तक वो किसी कंसल्टेंट का, किसी फिजिशियन का या किसी डॉक्टर की मदद या हॉस्पिटल की मदद नहीं लेते। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो सफ़र करते हैं, हमारी पर्सनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। सो when we are talking about early intervention, it's not just in children, it's in our well-being, in our health also. 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया गया था एंड इस साल का जो उन्होंने थीम चुना था वो था लिविंग वेल विथ किडनी डिजीजेस एंड स्पेशली आफ्टर द होल ईयर ऑफ कोविड 2020 जो हम लोगों ने गुजारा है कोविड-19 के साथ। लिविंग वेल विथ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, स्टैट्स सुन रहे हैं, डॉक्टर्स से वापस आ रही हैं रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट्स कि there have been a lot of deaths due to kidney failure with COVID-19. So talking about all of these things, we are going to be talking to Professor of Medicine and Dr. Mohammed Shahid, who is an endocrinologist and a diabetologist. अभी थोड़े सेकंड पहले ही मैं उनसे बात कर रही थी and his 25 years of experience is so I mean it's tremendously impeccable and जहाँ पे उन्होंने अपना MBBS किया Dow Medical से, he did his residency at Aga Khan University Hospital and spent 12 and a half years as a senior and assistant professor at Aga Khan University Hospital. He later went on to Johns Hopkins University to do his Masters in Public Health and stayed with Dow University for many, many years. Abhi, he is currently Professor of Medicine at Iqra University Medical and Dental College and has a private practice on Zamzama DHA Phase 5 कराची। तो उनको साथ लेते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद, हाउ आर यू? डॉक्टर शाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? I think we are lagging a little bit, but internet connections तो कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? I think I can hear myself on the... Okay. So I guess there is a bit of a lag. I will ask Dr. Shahid to join the stream again. And until then, I will give you a little bit of background of how... so let me take a second and Dr. Shahid को मैसेज कर लेते हैं ताकि वो हमें रीजॉइन कर सकें अपनी स्ट्रीम पे। Having said that, you know, वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है एंड ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान रैंक्स 8th in the list of countries with high rate of kidney diseases. 17 million, and again,
17 million से 20 million, 20 million से 21 million, 21 million people in Pakistan suffer from kidney diseases. हमें कहा जाता है कि primarily kidney diseases in Pakistan are due to self-medication and eating junk food. These kind of stats जब हम लोग सुनते हैं where we lack so much अपने data and research में, तो यही हम सोचते हैं कि how long are we going to follow Western data collection until जब तक हमें अपनी कल्चरल, अपनी लोकल रिसर्च नहीं मिलेगी, तब तक हम इसको और फैसिलिटेट नहीं कर सकते, अपने सिटीजन्स को और फैसिलिटेट नहीं कर सकते. Please keep the questions coming. As soon as we have Dr. Shahid rejoin us, we will be able to take him back on stream. Until then, let's talk a little about World Kidney Day, जो उन्होंने इस साल theme choose किया था, was living well with kidney diseases, and Dr. Shahid is back, so let's try and get him on our stream. Assalamu alaikum, Dr. Shahid. Wa alaikum assalam. Great, we are back. So I hope you heard your introduction, Dr. Shahid. Yes, Rabia. So thank you so much. आपने अपना वक्त निकाला. मैं यही अभी सारे लिसनर्स को बता रही थी, व्यूअर्स को बता रही थी कि हमने रिसेंटली वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया 11 मार्च को, एंड अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि लोग जब तक बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स में और अपने जिस्म में उनको प्रॉब्लम्स ना फील हो, इश्यूज ना फील हो हेल्थ में, तब तक वो आगे बढ़ के स्पेशलिस्ट एंड डॉक्टर्स को नहीं मिलते. जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट बेसिक किडनी फंक्शंस, तो अगर हम अपने व्यूअर्स को समझाना चाहें कि एक आपका जो गुर्दा है उसका क्या, उसकी वर्किंग क्या है, उसका मकसद क्या है हमारे जिस्म में होने का. उसका रबिया, दो किडनीज अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखी हैं और ये पूरी बॉडी के साथ कनेक्शन में होती हैं, और इनका मेन फंक्शन जो है वो एक्सक्रीशन है. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, यानी बॉडी का जो फुजला है यूरिन के ज़रिए वो निकालना, और जो बैड थिंग्स हैं बॉडी के अंदर वो उसको एक्सक्रीट करना. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, रिसर्चर्स अब इसके नए डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो भी लोगों को पता चलने शुरू हो गए. और किडनी का फंक्शन बॉडी को प्रोटेक्ट इस सेंस में करना है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, और सारे हार्मोन्स भी अब जो है कुछ वो किडनी से रिलेटेड डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पैराथायराइड हार्मोन है, उसका भी इसके साथ कनेक्शन है. इरेथ्रोपोइटिन है, उसका भी इसके साथ फंक्शन है. तो एक आम बंदा समझ ले कि किडनी का एक फंक्शन नहीं है, एक तो यूरिन बनाना इसका फंक्शन है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इसका फंक्शन है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना भी इसका फंक्शन है, और कुछ हार्मोन्स बॉडी के हैं जिसका इनडायरेक्टली किडनी के साथ एसोसिएशन है. अब किडनी जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इस सेंस में है कि अगर ये खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो फिर इंसान जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है. और रेनल फेलियर अगर किसी को हो गया है तो फिर ज़िंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर डायलिसिस तक नौबत आ जाती है. उससे पहले अगर हम बात करें कि इसको प्रोटेक्ट किस तरह करना है, तो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रखना है, और पानी जो कि एक नेसेसिटी है बॉडी की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि पानी से जो भी जिस्म के अंदर फुजला मौजूद है वो किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट हो सके. दूसरा काम, अगर किसी को कोई बीमारी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड प्रेशर है किसी को या शुगर है, तो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत वेल मेंटेन रखना है विद मेडिकेशंस. अब लोग कहते हैं कि जी क्या
ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र की होती है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर अगर किसी का हायर साइड पे है, तो फिर ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र के लिए लेनी होती है ताकि किडनी पे असर ना पड़ सके। इसी तरह अगर आप शुगर की बात करें तो शुगर भी वेल कंट्रोल रखनी चाहिए ताकि किडनी जो है वो प्रोटेक्ट रह सके। डॉक्टर शाहिद, अभी हम बात कर रहे थे कि मैं व्यूअर्स को ये बता रही थी कि पाकिस्तान रैंक्स 8th इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद द हाई रेट ऑफ किडनी डिजीजेस और अगर एंड किसी को एनुअली। पेन्स क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे बॉडी में मुख्तलिफ पेन्स एक्स एंड पेन्स होते हैं, जैसे जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जोड़ों की। आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा है डॉक्टर शाहिद। राइट। And there are more than 20,000 deaths annually. हम इस वक्त अपने व्यूअर्स को किस तरह ये बता सकते हैं कि अब अर्ली साइंस, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, हमें समझा रहे थे कि अर्ली साइंस, व्हाट आर द अर्ली साइंस टू टेक केयर ऑफ? जी, जी। अ, अ, जी, जी। जी, रबिया। जी। डॉक्टर शाहिद, आपकी वीडियो तो चल रही है लेकिन आपकी आवाज़ हमें नहीं पहुंच रही। ये अर्ली साइंस में हर बंदा वो डिफरेंट है। अम, there are different types of renal failure. One is known as acute failure, or the other one is known as chronic renal failure. Acute renal failure का मतलब ये है कि एक्यूट इवेंट कोई हुआ है और उसके बाद किडनी जो है वो शट डाउन में चली गई है और ये छोटे से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हुआ है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं I think we have lost Dr. Shahid due to unstable internet connection. Again, I am
sure he will be joining us again very soon. तो बात करते हैं इस वक्त कि हमारी जो गुर्दे हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट कि जो जिस्म में एक्सेस टॉक्सिन्स हों वो उनको हमारे जिस्म में से एक्सक्रीट या निकाल देते हैं. इस वक्त इस साल कोरोना के बाद जो वर्ल्ड किडनी डे जो सेलिब्रेट हुआ, जो ऑर्गेनाइज हुआ, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द थीम लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़. क्योंकि अब तो अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, कोई अलामात हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी इन अलामात के साथ, इस डिज़ीज़ के साथ किस तरह और बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जानकारी. जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक हम अपना और अपने जिस्म का ख्याल नहीं रख सकेंगे. डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज़. हमारे मुल्क में शुगर कंट्रोल और हेल्दी डाइट ये वो चीज़ें हैं जो हर डॉक्टर आपको बता रहा होता है या हर प्रैक्टिशनर आपको बता रहा होता है कि जब तक आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे नहीं काम करेंगे तब तक आप एक अच्छी ज़िंदगी विद हेल्दी ऑर्गन्स नहीं गुजार सकते. इट्स एग्जैक्टली लाइक हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं, जब तक उनके पुर्जे वेल ऑयल्ड, वेल क्लीन्ड होते हैं तो वो व्हीकल बहुत ही अच्छी तरह बगैर किसी प्रॉब्लम के चल रही होती है. लेकिन जैसे ही हम उनके पार्ट्स को ऑयल करना बंद कर दें और उनको सही तरह उनका ख्याल ना रखें तो गाड़ी बंद हो जाती है. तो हमारा जिस्म भी उसी की तरह है. एंड वी आर बैक. आई एम सो सॉरी डॉक्टर शाहिद, इंटरनेट कनेक्शन का हम कुछ कर ही नहीं सकते. जी, सो राबिया, हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ रेनल फेलियर. सो एक है एक्यूट रेनल फेलियर, जिसका मतलब ये है कि थोड़े अरसे के अंदर जो है वो किडनीज ने अपना काम, प्रीवियसली वो नॉर्मल थी कुछ अरसे का. अब इसका मेजर प्रॉब्लम जो है ना वो ये होता है कि अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है और उसके अंदर कुछ मजदूर लोग बाहर काम करते हैं, वाटर इनटेक उस अच्छा नहीं लेते, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है. दूसरा है तो पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी की वजह से जो है वो किडनी पे इफ़ेक्ट होता है और ये इफ़ेक्ट होने की वजह से गुर्दे का फंक्शन वो ख़राब होने लगता है. सो इसको हम मेजर करते हैं क्रेटिनिन से या EGFR से. सो ये एक्यूट रेनल फेलियर है जो कि प्रीवियसली नॉर्मल किडनीज के अंदर होता है. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. दूसरा टाइप है क्रॉनिक रेनल फेलियर. इसका मतलब ये है कि किडनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है और पाकिस्तान में इसके 2-3 मेन वजूहात हैं. एक वजह ये है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये कुछ दर्द कम करने की मेडिकेशंस हैं जो हमारे पास ओवर द काउंटर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. अब किसी को जोड़ों का दर्द हुआ या जिस्म में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने ये दवाई प्रिस्क्राइब की तो लोग उसको रोज़ाना लेते रहते हैं और लंबे अरसे तक जब इन दवाइयों को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस को लिया जाए तो ये गुर्दे पे असर करती हैं और गुर्दे का फंक्शन ख़राब कर देती हैं. दूसरी बीमारी जो है वो है ब्लड प्रेशर. इवन यंग पॉपुलेशन के अंदर अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये गुर्दे के फंक्शन को ख़राब कर देता है. और तीसरा प्रॉब्लम है डायबिटीज़ मेलाइटिस. शुगर हमारे यहाँ बहुत कॉमन है. पाकिस्तान जो है नंबर 4 पे आ गया है इन डायबिटीज़ और हर दूसरे मरीज़ को डायबिटीज़ है. अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रखी जाए तो गुर्दे का फंक्शन जो है वो ख़राब होने लगता है. अब बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में डायबिटीज़ के लिए. अगर गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो रहा है और लोग जो हैं वो मेटफॉर्मिन
इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर मेटफॉर्मिन की मिकदार को कम करना होता है इस मेडिकेशन को, और अगर गुर्दे का फंक्शन ख़राब है तो इसको बंद करना पड़ता है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल लेके चलें, यानी दर्द की दवाई डॉक्टर के पूछे बगैर इस्तेमाल ना करें, दूसरा ये कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, और तीसरा ये कि शुगर को अपने कंट्रोल में रखें, और अपने गुर्दे का फंक्शन डायबिटिक मरीज़ जो हैं वो साल 2 साल के बाद करवाते रहें, ताकि पता चलता रहे कि उनके गुर्दे मुतासिर तो नहीं हो रहे। थैंक यू डॉक्टर शाहिद, आपने इतनी पेशेंटली हमें ये समझाया। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, हमारे अगर हम इसको नैरो कर दें तो प्रिडोमिनेंटली किस किस्म की किडनी डिजीज़ेज़ ज़्यादा पाई जाती हैं? देखिए, जो पाकिस्तान की बात की जाए तो यंग पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज़ में अब बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, और पहले कुछ सालों तक ये नहीं था। इसको समझा था जाता था शुगर के ये 40 साल के बाद होगी, और या उन लोगों में होगी जो कि ऐसा नहीं है। आप अगर जेनेटिक के अंदर डायबिटीज़ है, फैमिली के किसी मेंबर को डायबिटीज़ है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और पाकिस्तान में क्योंकि हम अपने टेस्ट भी नहीं कराते, क्योंकि हमें टेस्ट खुद कराने पड़ते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज़ है या नहीं है। जब पता चलता है तब शुगर 300 HbA1c 11-12 की होती है। तो और कितने अरसे से डायबिटीज़ है, वी डोंट नो। सो एक तो ये है कि डायबिटीज़ का पता होना कि कितने अरसे बाद डायबिटीज़ हो रही है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। कि बहुत सारे साल तो ऐसे ही गुजर गए कि बॉडी ने उसको मेंटेन किसी तरीके से रखा, और फिर जब आप दवाइयाँ शुरू कर रहे होते हैं तो उस वक्त पैनक्रियाज अपना बहुत काम तो ख़त्म कर चुका होता है, सो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती। जब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती, आप दवाइयाँ देते हैं, तो फिर शुगर को कंट्रोल करने की मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। सो डायबिटीज़ नंबर 1 है पाकिस्तान में, अगर आप इस सूरत हाल की बात करें। सो इट्स अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज़। दूसरा जो है वो ब्लड प्रेशर है। सो ब्लड प्रेशर की बीमारियां की वजह से बीमारियां गुर्दे की, ये बहुत कॉमन है। और तीसरा मैंने आपको बताया नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। हाँ, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, ठीक है? ये जिस्म बीमारियां हैं जो कि अपने ही खिलाफ काम कर रही होती हैं, और गुर्दा भी उससे मुतासिर होता है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जो कि गुर्दे को अफेक्ट करती हैं, लेकिन इनका रेशो बहुत कम है बनिस्बत डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दर्द की दवाइयों की वजह से जो असर होता है गुर्दे पे उसके मुकाबले में।
डॉक्टर शाहिद, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में, तो बेस्ड ऑन वेस्टर्न डेटा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो सिग्निफिकेंटली एक बंदे की जो लाइफ स्पैन या उसकी जो लाइफ की जो उसकी जो वर्थ होती है रबिया, वो बहुत डिक्रीज हो जाती है सिग्निफिकेंटली। क्वेश्चन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी, तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा अबाउट वेरियस एनवायरमेंटल, एथनिक, सोशो इकोनॉमिकल एंड रूरल अर्बन डिस्क्रिपेंसीज जो हैं आपको हमारे आवाज़ आ मुल्क रही है में। रबिया? जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। आपको मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर शाहिद? तो हम इसकी प्रेवलेंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारे मुल्क की सोशो इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशंस हैं उसकी वजह से क्या वजूहात होते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस विच सप्लीमेंट और एड किडनी डिजीज, जैसे कि आपने हमें बताया डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए रबिया, अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करें तो दिस इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर, और अगर अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तो उसको हार्ट डिजीज़ होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप अर्बन रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो प्रीवियसली हम समझते थे कि बीमारियां ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में हैं ऑफ पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, जो कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो रूरल एरियाज़ में भी देखी जाती हैं। और इसमें मेजर जो है हमने प्रेवलेंस देखी डायबिटीज़ की इटसेल्फ इन रूरल एरियाज, सो नंबर्स ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज़ आर इंक्रीजिंग इन रूरल एरियाज। तो ये दोनों हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप दोनों का मसला है कि ये बीमारियां क्रॉनिक किडनी डिजीज़ दोनों उसमें हो सकती है सोशो इकोनॉमिक उसमें। अब मसला ये है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का जो इलाज है, सो इनिशियली वन इज़ डायलिसिस और द अदर वन इज़ रीनल ट्रांसप्लांट। सो ये दोनों जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं दे आर वेरी कॉस्टली। और फॉर एग्जांपल अगर कोई किडनी डिजीज़ किसी को हो गई, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और जिस्म के अंदर तेज़ाबियत होने लगी, तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और बॉडी को बचाने के लिए हमें इन मरीज़ों का डायलिसिस करना पड़ता है। सो एक बार डायलिसिस नहीं, हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होता है। सो डायलिसिस की अपनी एक कॉस्ट है, डायलिसिस के अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट बॉडी को के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो डायलिसिस इज वन ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। और दूसरा यह है कि अगर मैचिंग हो जाती है तो फिर रेनल ट्रांसप्लांट इज एन अदर ऑप्शन। सो रेनल ट्रांसप्लांट के अपने मसाइल हैं कि मरीज़ को सारी उम्र जो है वो दवाइयों पे रहना पड़ता है, और फिर गुर्दा कौन दे। सो ये किसी रिश्तेदारी कोई दे, क्योंकि मैचिंग ज़रूरी होती है रेनल ट्रांसप्लांट में। तो जितनी हम बात कर रहे हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई और उसका इलाज, इतना आसान नहीं है इसका इलाज, क्योंकि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसको मेडिकेशंस की लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो है अगर ट्रांसप्लांट किया है तो मेडिकेशंस भी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ कराची में कुछ सेंटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीट करते हैं, इसलिए बहुत से रूरल सिंध या रूरल बलूचिस्तान के लोग भी कराची आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। सो ये एक दिन का इलाज नहीं होता, ये फिर इनको महीनों सालों
इलाज कराना पड़ता है, और ये गरीब लोग होते हैं तो ये रूरल एरिया से यहाँ आके अपना इलाज कराते हैं। सो इसलिए ऐसे छोटे इलाकों में भी किडनी के सेंटर्स होने चाहिए जहाँ डायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन मौजूद हो जो कि किडनी डिजीज़ का इलाज कर सकें। एब्सोल्युटली एंड इसी के लिए आई थिंक बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट को भी अर्ज करते रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल या जो ये इदारे बने हुए हैं वो कितने लोगों की मदद करेंगे. सो गवर्नमेंट सपोर्ट हैज़ टू बी देयर. दे हैव टू really set up more kiosks and kiosk hospitals and clinics in rural areas. But जब हम बात कर रहे होते हैं about rural, I believe, and correct me if I'm wrong, Dr. Shahid, that this is not just a rural problem that we are dealing with. Other than being a global phenomena, even in our urban areas, we are facing a lot of problems. जहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि renal impairment जो है, there's a high burden of not just 40 plus या 50 plus जो एक ज़माने में होती थी. Now 30-year-olds are also facing this issue. There are many youngsters who are facing kidney stone issue, and kidney stones overlooked go into huge issues like pain, kidney pain intolerance, the stones being passed out, and UTIs, urinary tract infections. तो हम अपने youngsters के lifestyle में किस किस्म के changes इम्प्रूव करने के लिए इम्पोज कर सकते हैं, या उनको बेहतरी की तरफ उनको हम दिखा सकते हैं ये रास्ता कि भाई दिस इज, यू आर नॉट सपोज टू फेस दीज इश्यूज? सो रबिया, वेरी गुड क्वेश्चन. रेनल स्टोन्स की जहाँ बात करते हैं, सो हम उस इलाके में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है. सो मैंने शुरू में ही कहा कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सो शुड बी टेकन, ताकि जो है किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके. ठीक है, अगर आप पानी पीते रहेंगे तो जो स्टोन फॉर्मेशन होती है उसके चांसेस कम होते हैं. बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप पानी पिए, डिस्पाइट ऑफ दैट स्टोन फॉर्मेशन जो होती है वो हो सकती है. और फिर उसके लिए जब स्टोन अगर फॉर्म हो गया है तो गुर्दे का फंक्शन चेक करते रहना चाहिए, और फिर यूरोलॉजिस्ट से अपने राब्ते में रहना चाहिए, बिकॉज स्टोन फॉर्मेशन किस साइट पे है और उसका साइज़ क्या है, दैट्स इम्पॉर्टेंट. और अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड के अंदर किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है. हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब यह है कि किडनी जो है वो उसका साइज़ इंक्रीज तो नहीं हो गया उस स्टोन की वजह से, या आम अल्फाज में ये है कि सूजन तो नहीं हो गई किडनी पे. तो अगर ये है तो स्टोन को जल्द अज जल्द रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. तो साइट और साइज ऑफ रेनल स्टोन इज़ इम्पॉर्टेंट. अब बचाव किस तरह हो सकते हैं? बचाव मैंने आपको बताया, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा. हम जो डाइट आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हम फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, हम बीफ मटन इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. सो बेहतर होगा कि अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा, बीफ और मटन का इस्तेमाल कम से कम, ताकि जो है वो किडनी को अपना फंक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. और बॉडी ये सिर्फ किडनी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स ऑल्सो हेल्दी फॉर द हार्ट एंड फॉर अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो सिंपल डाइट रखें विच वॉज प्रीवियसली नोन. और ये जो वेस्टर्नाइज्ड डाइट है जिसके अंदर कार्ब ज़्यादा, जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किडनी पे एक बोझ डालती हैं, एंड दे कॉजेस फेलियर ऑफ किडनी इन एडवांस स्टेजेस. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम. लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर ये अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो गवर्नमेंट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है. हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं. वन इज़ पॉपुलेशन, दूसरा जो है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, तीसरा जो है अनएजुकेशन. और आप खुद तसव्वुर करें कि अगर किसी बंदे को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई और वो काम कर रहा हो, तो फिर 3 हफ्ते में 3 बार काम से छुट्टी लेकर डायलिसिस के लिए जाना ये कोई आसान काम नहीं है.
सो अपनी शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हुए, दवाइयाँ लेते हुए, अगर हफ्ते में 3 दिन छुट्टी करेगा तो बंदा काम क्या करेगा? सो सबसे बेहतर इसमें ये है कि आप इसको प्रिवेंट करें, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को होने ही ना दें। और वो कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें, अगर कोई बीमारी है तो उसको वेल मेंटेन रखें, उसको कंट्रोल में रखें, अपने मोहल्ले से राब्ते में रहें, ताकि अगर वो आपका साल-साल से क्रेटिनिन, ईजीएफआर करवा रहे हैं, तो एक नज़र रहती है कि किडनी पे कहीं बोझ तो नहीं डल रहा। और एक डायबिटिक मरीज़ों में यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन एक बहुत आसान टेस्ट होता है कि एल्ब्यूमिन देखने के लिए कि प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रही गुर्दे से, तो ये करवाते रहना चाहिए टेस्ट। डॉक्टर शाहिद, मार्च 2019 में एक सर्वे किया गया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि तकरीबन 21 मिलियन पाकिस्तानी सफ़र कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपने बताया कि वेस्टर्न डाइट ऑफ जंक फूड एंड सेल्फ मेडिकेशन, नॉट इनफ वाटर, मीट डाइट की इंटेक ज़्यादा एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की इंटेक कम। दीज आर ऑल वो सारी एडिटिव्स जो हमारी किडनीज को प्राइम फंक्शन करने से रोकते हैं या अपना जो उनका जो किरदार अदा करते हैं वो हमारे जिस्मात में वो रिड्यूस हो जाता है। There is also a study that I was going through, Dr. Shahid, which talked about tobacco control. How does टोबैको या जिसे तंबाकू कहते हैं, तंबाकू या अदर एडिटिव्स वो हमारे किडनीज को किस तरह खराब करते हैं या किस तरह एड खराब कर होने में? अब किडनी भी जो है वो इज एन ऑर्गन, और दिस इज अ माइक्रोवैस्कुलर ऑर्गन। माइक्रोवैस्कुलर का मतलब एक छोटी छोटी वेसल्स इस किडनी के अंदर मौजूद होती हैं। और अगर एक नेफ्रॉन को आप लें, यानी एक किडनी मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स पे मिलके बनती है। सो एक नेफ्रॉन को अगर लें तो उसका फंक्शन, उसका अगर आप शेप देखें तो कप नुमा होते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ वेसल्स जा रही होती हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स सा कुदरत ने एक निज़ाम रखा है। अब अगर आप इस नेफ्रॉन की साख को देखें तो ये तंबाकू, गुटखा, छालिया, ये माइक्रोवैस्कुलर जिस तरह हार्ट पे अफेक्ट करते हैं, उसी तरह किडनी की वेसल्स के अंदर जो हैं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारा कुदरत ने किडनी का फंक्शन ये रखा है कि एक्सक्रीट करना जो भी जिस्म के अंदर ज़रात मौजूद हैं जो कि नुकसानदेह ज़रात हैं। तो टोबैको तो नेचुरल चीज़ नहीं है। उसी तरह तंबाकू के साथ जो है गुटखा, छालिया, हम रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि ये स्टोन फॉर्मेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे छालिया हो गई, गुटखा हो गया। सो ये माइक्रोवैस्कुलर जो किडनी का फंक्शन है उसको डिरेंज करता है और इनडायरेक्टली जो है गुर्दे के फंक्शन को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करता है। सो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जो है माइक्रोवैस्कुलर जो उसका आर्किटेक्चर है उस पे ये असरअंदाज होता है। सो टोबैको यूज़, स्मोकिंग, गुटखा, छालिया, ये सारे जो हैं दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन डाइट। सो खाने पीने में इसको नहीं लेना चाहिए। बट ये हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल हमारी जो है वो आजकल इस तरफ जा रही है और दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम के रेनल स्टोन की फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से। सो नौजवान नस्ल को यही हम एडवाइस देंगे कि प्लीज़ 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 अपनी सेहत, अपने ऑर्गन्स का ख्याल रखें, बिकॉज ये ऑर्गन्स आपको एक दफ़ा मिलते हैं। और जैसे डॉक्टर शाहिद ने बोला कि ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट आउटकम वंस योर ऑर्गन इज़ फेलिंग, बिकॉज जो डायलिसिस है वो भी एक बहुत शॉर्ट टाइम क्योर होता है। डॉक्टर शाहिद, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल आदमी और औरतों में, मेल एंड फीमेल में किडनी डिजीज़ेस क्या वेरी करती हैं, या जिस तरह किडनी डिजीज़ जो अपना नज़र अंजाम देती है क्या वो मुख्तलिफ होता है?
देखिए जेंडर डिफरेंस आप हमने बैकग्राउंड की बात कर ली, हमने बात कर ली ऑफ द रिस्क फैक्टर्स which are related to chronic kidney disease. So you can imagine what is the risk factor behind chronic kidney disease. So men, अब तो ख़वातीन और मेल्स के अंदर हम अगर देखें, सो स्मोकिंग अगर हमारे माशरे के अंदर ज़्यादा मेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, बट फीमेल्स का नंबर भी इसमें इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है 51% इज़ फीमेल एंड 49% मेन है। सो अगर आप बीमारियों की बात करें, रिस्क फैक्टर्स की, तो ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियाँ ये मेल्स के अंदर भी हैं और फीमेल्स के अंदर भी हैं, बट मेल्स के अंदर हम हाई रिस्क ग्रुप देखते हैं विद रिलेटेड टू स्मोकिंग, गुटखा, छालिया। तो इनके जो हैं, और ये बाहर काम करते हैं, तो इस वजह से पानी का इस्तेमाल भी कम करते हैं, तो यूजुअली हम देख रहे हैं कि मेल्स के अंदर ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। बट फीमेल्स के अंदर ऑटो इम्यून की बीमारियां, जो बॉडी अपने ही खिलाफ काम कर रही होती है, सो ऑटो इम्यून बीमारियां जो हैं फीमेल्स के अंदर हम ज़्यादा देखते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो किडनी डिजीज़ बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून प्रोसेसेस आर मोर कॉमन इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। लेकिन हम दोनों पॉपुलेशन के अंदर देख रहे हैं, जो भी बंदा अपने रिस्क फैक्टर्स यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पानी, कोलेस्ट्रॉल, इनको अगर कंट्रोल में नहीं रखेगा तो वो हाई रिस्क हो जाएगा फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज़। डॉक्टर शाहिद, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यू नो, a lot of people suffer from thyroid disorders. Again, आपकी किडनीज जिस तरह काम करेंगी वो भी आपके थायराइड को इफेक्ट करेंगी, आपका थायराइड जिस तरह काम करेगा वो आपकी किडनी को अफेक्ट करेगा, एंड एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज इंटरकनेक्टेड। जब हम बात करते हैं अबाउट हॉर्मोन्स, जब हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो डू दे ऑल्सो अफेक्ट आवर किडनीज? डॉक्टर शाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? We were having a fabulous conversation with Dr. Shahid, and I believe that हमारा इंटरनेट साथ दोबारा छूट गया है। आज हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इस तरह धोखा दे रही है जिसकी कोई हद नहीं, इस कदर धोखा दे रही है। Again, Dr. Shahid has spoken about so many things. पानी का इंटेक, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को, हम अपनी स्क्रीनिंग ईयरली, Dr. Shahid is back, so he talked about yearly screening कि हमारी जो screening है, I really apologize Dr. Shahid, I know कि this is extremely irritating जब इंटरनेट इस तरह प्ले करता है, so thank you so much for reconnecting. No problem, welcome. डॉक्टर शाहिद, जो सवाल मेरा ये था कि हमारे जो जिस्म के सारे ऑर्गन्स हैं आर इंटरकनेक्टेड। अगर थायराइड बढ़ा हुआ होता है तो किडनीज पे भी असर पड़ता है, बट आजकल जैसे कि हम यंग, बिकॉज वी आर अ यंग पॉपुलेशन, हमारे जो यूथ का जो मार्जिन है वो हमारी पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करता है, उनको अगर हम ये समझाते हुए चलें कि hormone levels की imbalance of hormones can also lead to kidney diseases. If you can shed some light on that. Can you repeat the question, Rabia?
श्योर। डॉक्टर शाहिद, हम बात कर रहे हैं कि हमारी, ओके, आई थिंक आई हैव लॉस्ट हिम अगेन। Dr. Shahid has been so amazing, connecting again and again and again, regardless of how many times the internet connection is breaking. जितनी देर में डॉक्टर शाहिद इज़ रिकनेक्टिंग, मैं आपको स्टैट्स थोड़े से और एक और दफ़ा बताती चलूँ कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 21 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम किडनी डिजीज़। वी आर अ पॉपुलेशन जहाँ पे यूथ जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है हमारे पॉपुलेशन को। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कीपिंग अ हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, साफ पानी पीना, एक्सरसाइज करना, तंबाकू नोशी को कंट्रोल करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर शाहिद ने बताया कि हमारी जो आम आवाम है जो बाहर काम कर रही है, धूप में काम कर रही है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो पानी की इंटेक ज़्यादा अपनी बढ़ाइए, साफ़ पानी पीने की कोशिश कीजिए, और फल और सब्जियां अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें, क्योंकि हर साल 20,000 से ज़्यादा अफराद पाकिस्तान में किडनी डिजीज़ के बायस फौत हो जाते हैं। एंड ये 8वां रैंक करता है पाकिस्तान उन कंट्रीज़ के साथ जो हाईएस्ट रेट रखते हैं किडनी डिजीज़ में। इसकी कुछ वजूहात हैं, वो है लेट डायग्नोसिस, किडनी स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं और डॉक्टर या प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाया जा सकता, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ को पता नहीं होता या आगाही नहीं होती, और इस तरह पेशेंट सफ़र करते हुए वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी बन जाते हैं और डायबिटीज़ का भी मरीज़ बन जाते हैं। और वो एक छोटी सी बीमारी जो बहुत आसानी से कंट्रोल की जा सकती थी, सिर्फ आपके पानी के इंटेक और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, वो एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। जहाँ पे हमारे जेनेटिक फैक्टर्स लाई करते हैं, अगेन अगर आपके घर में कोई किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो तो प्लीज़ अपने आप को स्क्रीन करें, ताकि जैसे कि डॉक्टर शाहिद ने बताया कि ब्लड टेस्ट या यूरिन कल्चर के बायस आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। And I think Dr. Shahid tried to connect again. Let's see if he is able to. And I think the internet is lagging majorly. But we also spoke about कि गुर्दों की पथरियाँ जब हो जाती हैं, जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसमें पता चल जाता है कि गुर्दे की पथरी कितनी बड़ी है। अगर छोटी पथरियाँ होती हैं तो डॉक्टर्स आपको इनकरेज करते हैं कि पानी और मेडिसिन के साथ वो नेचुरली ही निकल जाए, लेकिन अगर पथरी का साइज़ बड़ा होता है तो फिर इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी और लाजमी होती है। Unfortunately, Dr. Shahid has not been able to connect with us again. I know that he is trying. So I am going to take Dr. Shahid on line with us ताकि हम ये session end कर सकें. Okay. Let's see if I can get him on. Okay. All right. I will try once more. अगर वो connect हो जाते हैं तो it will be good कि हम अपना Dr. Shahid, you are on speaker with me because I think कि internet की बुरी connection के साथ I know you are trying again and again. Yes. Okay.
क्वेश्चन बता दें so I can answer जी डॉक्टर शाहिद, हम बात कर रहे थे अबाउट वी आर गोइंग टू बी रैपिंग अप द सेशन, बट हम बात कर रहे थे अबाउट यंगस्टर्स। हमारी जो यूथ है वो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन मेक करती है, तो उनको ये समझाना कि एक तो आपने उनके किडनी और लाइफस्टाइल की हेल्दी लाइफस्टाइल रखने का जो आपने बताया, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से किडनी पे किस किस्म के असरात पड़ते हैं? देखिए हार्मोन्स जो है हमारी यंग जनरेशन जो है स्पेसिफिकली ये जो है अगर हम मेन की बात करें तो कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं। सो बॉडी बिल्डिंग के दौरान मैंने देखा है वो कुछ हार्मोन्स लगवाते हैं, ठीक है। सो जिसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसके अंदर जो डाइट होती है उसका भी पता नहीं होता, और दैट अफेक्ट्स द किडनी बेसिकली। सो जब भी आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हो या कोई शेक्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो यंग पॉपुलेशन के लिए मेरा ये मैसेज है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं कि जी उसमें देख लें और अपने नॉलेज से राब्ते में रहें कि ये कहीं हार्मफुल तो नहीं है आपके किडनीज के लिए, और जो मेडिकेशंस ओवर द काउंटर ले रहे हैं वो भी ऐसा ना करें। अगर बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो जाती है और किडनीज जो है और शुगर्स बहुत ज्यादा होती हैं और कंसल्टेंट कहते हैं कि जी आप इंसुलिन पे आ जाएं, तो इंसुलिन इज अ सेफ मेडिकेशन फॉर किडनीज। सो जितना जल्दी हो सके वो इंसुलिन पे आए डायबिटिक मरीज अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं होती, ताकि किडनी को बचाया जा सके, बिकॉज माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इंसुलिन से बच सकती हैं। तो इसलिए जो है अगर डॉक्टर कहते हैं कि इंसुलिन का इस्तेमाल जरूरी है, इंसुलिन का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर की दवाइयां कुछ हैं जिसमें कुछ दवाइयां जैसे ACE इनहिबिटर्स हैं या ARBs हैं, ये मेडिकेशंस ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती हैं बल्कि जो है वो किडनीज को भी इफेक्ट होने से बचाती हैं, और यूरिन के अंदर जो एल्ब्यूमिन आता है डायबिटिक मरीजों में वो भी इसको जो है प्रिवेंट करती हैं। सो यंग एज पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक भी अब बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर वाले भी हैं, और वो बच्चियां भी हैं जो जिम ज्वाइन किया हुआ है और वो हार्मोन्स लेते हैं और साथ ही साथ जो है वो स्टेरॉइड्स लेते हैं और प्रोटीन्स लेते हैं। तो ऐसे शेक्स से और उनसे बचना चाहिए और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आई गेस इस वक्त हमारी यूथ नज़रअंदाज कर देती है एंड उसके बारे में इतना नहीं सोचती, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं जी वो जिम में एक्सेसिव किस्म के स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल करते हैं, एंड जैसे कि आपने कहा ये जो प्रोटीन शेक्स हैं वो भी हमारे किडनीज पे बहुत मुख्तलिफ किस्म के असरात कर सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि एक प्रोडक्ट के पीछे जो फाइन प्रिंट में लिखा हुआ होता है वो कभी उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं बताता। जैसे कि हम हमेशा जब मेडिसिन लेते हैं तो हम मेडिसिन ले लेंगे लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा बंदे को या पेशेंट को ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि ओ माय गॉड इतने सारे अलामात हैं अगर मेडिसिन लेने के, तो मैं क्या ठीक भी हो रही हूँ या नहीं। हम अपना सेशन क्लोज इस मौजू पे करेंगे डॉक्टर शाहिद के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, चूँकि हम फाइन प्रिंट की बात कर रहे हैं, वो ऐसी क्या रीजंस हो सकते हैं जो हमें ना पता हो, जैसे कि हमारे किडनीज का जो फंक्शन है, जो हम लोग खाने खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोडा। आई थिंक वी आर ऑन। ओके, सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं फिर आ गया। जी, सोडा इज डायबिटिक मरीजों में एज वेल एज फॉर नॉर्मल पीपल ये एक रिस्क फैक्टर है, बिकॉज सोडा बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो आप
ये कॉम्पोजिशन में बॉडी के डिफर करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, इसीलिए ये शेक्स और सोडा जैसे ये कम से कम इस्तेमाल में लाना चाहिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए ताकि जो है वो किडनी के प्रॉब्लम से बचा जा सके। और किडनीज मैं अपने डायबिटिक मरीजों को बताता हूँ कि किडनीज जो है किडनीज के प्रॉब्लम जो हो रहे हैं, मैं अपने डायबिटिक मरीजों को यही बताता हूँ कि किडनी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक बार हो जाते हैं तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो मरीज मुझसे कहते हैं कि या ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये क्रेटिनिन जो जंप दवाइयाँ जो प्रॉब्लम को बेहतर तो करती हैं, लेकिन वो नॉर्मल 2 पे आ जाए ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार गुर्दे खराब हो जाते हैं तो फिर उसके लिए लाइफ लॉन्ग आपको सफ़र करना पड़ता है और प्रॉब्लम्स में आप फेस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। आई नो कि ये एक बहुत ही इंटरनेट के बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इट वाज अ टैक्सिंग सिचुएशन, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन एंड आई थिंक पेशेंट्स के लिए तो आपने बहुत सारे मैसेजेस छोड़ दिए। क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर प्रैक्टिशनर्स एंड जनरल फिजिशियंस कि उनको क्या एडवाइस देनी चाहिए फॉर पेशेंट्स कमिंग इन। मेरे ख्याल से रबिया एज अ फिजिशियन मेरा जो रोल है वो रोल ये कि मैं इलाज करूं मरीज का, और जो मैं दवाई दे रहा हूँ दैट शुड बी सेफ। सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं होता कि जो दर्द है उस दर्द को मैं फौरन ख़त्म कर दूं, ऐसी दवाइयों के से जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, क्योंकि आप मरीज को ये बताना कि ये फॉर एग्जांपल अगर नॉन स्टेरॉइडल अगर कोई प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो मरीज को ये बता दें कि ये सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए ये दवाई इस्तेमाल करनी है, उसके बाद दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। और बेहतर होगा कि ये जो दवाइयाँ किडनी पे अफेक्ट करती हैं उन्हें हमें मार्केट से निकाल ही देना चाहिए, बिकॉज अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि सेफ होती हैं किडनी के लिए भी और हार्ट के लिए भी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं अब वो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होंगी जो कि किडनी के लिए सेफ होंगी और हार्ट के लिए सेफ होंगी। अभी पाकिस्तान में 2-3 साल पहले 2 साल हो गए तकरीबन एक दवाई नई आई है जिसको SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। इसका काम शुगर को गुर्दे के ज़रिए खारिज करना और गुर्दे को और हार्ट को प्रोटेक्ट रखना है। तो अब FDA वही दवाइयाँ अप्रूव कर रहा है डायबिटीज़ के लिए जो कि रिसर्च में साबित हो रहा है कि वो किडनी के लिए सेफ है और हार्ट के लिए सेफ है। तो प्रैक्टिशनर्स को अगर डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसको इंसुलिन पे जल्द अज जल्द लाएं ताकि गुर्दे बचाए जा सकें, और ACE इनहिबिटर ARB का इस्तेमाल करें अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद। आई थिंक हमें दोबारा एक सेशन करना पड़ेगा जहाँ पे हम बात करेंगे सारे उन दवाइयों का जो इस वक्त मार्केट में है और नहीं होनी चाहिए, and the importance of the increasing pandemic which is diabetes. तो हम ज़रूर आपको दोबारा we are going to approach you again to have that conversation. But thank you so much for your time and for your expertise and your knowledge today. I think Dr. Shahid Dubara has gotten disconnected. So thank you so much for tuning in to all those who are watching and
were patiently watching with us. Take care until next week. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.